تجزیہ نگار ہیں، صحافی ہیں، اور محمد مالک جو کہ خود بھی ایک صحافی ہیں، ان دونوں کی قمر جاوید باجوہ صاحب کے ساتھ ایک شادی پر ملاقات ہوئی. مجیب الرحمان شامی صاحب نے یہ پورا واقعہ ٹیلی ویژن کے اوپر آ کر نریٹ کیا ہے. انہوں نے بتایا کہ قمر جاوید باجوہ صاحب ہمارے پاس آ کر بیٹھ گئے، اور پھر جو میری کچھ ذرائع سے بات ہوئی وہاں سے پتہ چلا کہ انہوں نے ان سے یہ بات شروع نہیں کی تھی، انہوں نے خود ان سے یہ بات شروع کی، اور 3 چیزوں کے اوپر انہوں نے قسمیں کھائیں، اور 3 قسمیں کھائیں. آپ سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے، کیونکہ جو قسمیں باجوہ صاحب نے کھائیں وہ اگر باجوہ صاحب سچے ہوتے تو تب بھی نہیں کھانی چاہیے تھی، جھوٹے ہوتے تو بالکل ہی نہیں کھانی چاہیے تھی. انہوں نے جس لیول کی قسمیں کھا لیں جھوٹے ہونے کے باوجود، میں کہہ رہا ہوں سچے ہوتے تب بھی نہیں کھانی چاہیے تھی. If he holds a little bit of credibility or morality or integrity تو انہیں اس رخ نہیں جانا چاہیے تھا. بہرحال قمر جاوید باجوہ صاحب نے جیب سے قرآن کریم نکالا. جی ہاں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ مجیب الرحمان شامی ٹیلی ویژن پر آ کر کہہ رہے ہیں. مین وہ قرآن کریم کو جیب میں لے کے گھومتے ہیں. ہم سنتے تھے کہ کچہریوں میں جھوٹے قرآن اٹھانے والے لوگ پھر رہے ہوتے ہیں، جیب میں تو ان کے بھی قرآن کریم نہیں ہوتا، وہ عدالت سے ہی لیتے ہیں. یہاں تو جیب میں گھوما جا رہا ہے جھوٹی قسمیں اٹھانے کے لیے. تو انہوں نے قرآن کریم جیب میں سے نکال کے اس پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی دونوں کے سامنے، اور دونوں نے پوچھا نہیں، یہ خود سے رینڈر کر رہے ہیں وہ سب کچھ. انہوں نے کہا کہ میں ملوث نہیں ہوں عمران خان کی حکومت گرانے میں. واہ واہ واہ. اور ساتھ انہوں نے دوسری جھوٹی قسم اٹھائی کہ میں نواز شریف کو باہر بھیجنے میں ملوث نہیں ہوں. اور ساتھ انہوں نے تیسری قسم کھائی کہ میں ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتا تھا، میرا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، میں نے کسی کو نہیں کہا تھا، میں نے کوئی لابینگ نہیں کی تھی، میں نے کوئی کوشش نہیں کی تھی. اور قرآن کریم کے اوپر ہاتھ رکھ کر جو ان کی جیب میں تھا اس میں سے نکالا انہوں نے جیب میں سے، اس پر انہوں نے یہ 3 باتوں پر قسم کھائی. اور یہی 2 قسمیں نہیں، اس سے آگے نکل گئے، بہت آگے نکل گئے، اور یہ کہا کہ قیامت کے دن مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب نہ ہو، اور کہا کہ مجھے میری مری ہوئی ماں کی قبر کی قسم ہے کہ میں نے یہ سب کچھ نہیں کیا. سب سے پہلے تو میں درود شریف بھیجوں گا، میں ابھی پڑھوں گا وی لاگ کے بعد اور بھیجوں گا، اور آپ سب سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ درود شریف پڑھ کر بھیجیں باجوہ صاحب کی مری ہوئی ماں کے اوپر، کیونکہ مائیں سانجھی ہوتی ہیں. اللہ ان کی مغفرت کرے، اور یہ جو عذاب ان کی قبر پر باجوہ صاحب ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ نہ کرے یہ ان پر پہنچے، کیونکہ وہ ہماری بھی ماں ہیں، مائیں سب کی سانجھی ہوتی ہیں. اس لیے ضرور میرے وی لاگ کے بعد میری آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے، یہ میں کسی مخالفت یا میں یقینی طور پر آپ کو ہمبلی کہہ رہا ہوں کہ ایک دفعہ درود شریف ریسائٹ کیجیے گا، اور باجوہ صاحب کی والدہ ماجدہ کی قبر جو ہماری والدہ ماجدہ کی طرح کی ہیں، بالکل میں دل سے سمجھتا ہوں، تاکہ اللہ ان کے درجات بلند کرے، اور باجوہ صاحب کے کیے ہوئے اور یہ اسپیشلی جو جھوٹی قسمیں اٹھا رہے ہیں اس کا ان کے اوپر کوئی اثر نہ پڑے گا بھی نہیں انشاءاللہ. ان کا کیا قصور ہے اس میں؟ باجوہ صاحب نے یہ 3 قسمیں کھائیں. مجھے وہ مشہور زمانہ واقعہ یاد آ گیا. ایک تو میں آپ کو ابھی سنواتا ہوں پہلے ذرا سن لیجئے، پھر میں آپ کو ایک پرائم منسٹر ہاؤس میں واقعہ سناؤں گا جس میں باجوہ صاحب نے بالکل اسی طریقے سے جھوٹا قرآن اٹھایا تھا. پہلے ذرا یہ واقعہ سنیے مجیب الرحمان شامی کیا کہتے ہیں، اور اس چیز کے گواہ موجود ہے. خواجہ آصف ٹیلی ویژن پر آ کر کہہ چکے ہیں، محمد زبیر صاحب کہہ چکے ہیں، اس چیز کے گواہ موجود ہے، ہم سب گواہ موجود ہیں اس چیز کے. لیکن باجوہ صاحب لگتا ہے یا تو کسی اس ٹائم بیماری میں چلے گئے دماغی طور پر، یا انہیں گلٹ اتنا ہو گیا اپنے کیے ہوئے پر کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی. سو ہی از گون ٹو دس ایکسٹینٹ. نہیں جانا چاہیے تھا انہیں، سب کو پتا ہے کہ یہ سب کچھ انہوں نے کیا ہوا ہے. انہیں اپنی اب دنیا تو تباہ ہو ہی گئی تھی، آخرت کو چلے کچھ نہ کچھ بچانا چاہیے تھا. اب اس طرح کی جھوٹی قسمیں کس راستے پہ نکل گئے ہیں. پہلے ذرا سنیے مجیب الرحمان شامی کیا کہتے ہیں، پھر میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں. انہوں نے قرآن کریم جو تھا ان کی جیب میں تھا، اور انہوں نے اس کو نکال کے اس پہ ہاتھ رکھا اور قرآن کی قسم کھائی، اور اس کے بعد پھر یہ بھی کہا کہ اپنی والدہ کی قبر کی قسم کھائی، اور پھر ساتھ یہ کہا کہ مجھے ایک موقع پر تو انہوں نے یہ کہا مجھے رسول اللہ کی شفاعت نصیب نہ ہو اگر میں غلط بیانی کر رہا ہوں تو. اب اس میں تفصیل میں جائے بغیر میں موٹی سی بات عرض کرتا ہوں آپ کو. ایک تو انہوں نے کہا کہ جو نواز شریف صاحب تھے جب وہ لاہور سے لندن گئے تو اس میں ان کا کوئی کردار نہیں تھا، اور انہوں نے ان کو بجوایا نہیں وہاں. بالکل میں اس سے اپنے آپ کو بری ذمہ رکھتا ہوں. پھر انہوں نے دوسری بات یہ کہی کہ جو عمران خان صاحب کی حکومت تھی، اور یہ الزام لگایا گیا کہ امریکہ کے ساتھ مل کر ہم نے سازش کی ہے اور ان کی حکومت کو گرایا ہے. ایسی اس بات کی بھی میں سختی سے تردید کرتا ہوں. اور تیسری بات یہ کہی، اور آخری بات اور بڑی اہم بات ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے جو ایکسٹینشن کی، جو آخری ایکسٹینشن کہی جاتی ہے نا، اس کی خواہش ظاہر نہیں کی، نہ کسی سے تقاضا کیا، نہ اس کے لیے کوشش کی،
ना किसी से कोई मजबूरी किसी को मजबूर किया, और बिल्कुल मेरे ऊपर जो है झूठ बोला जा रहा है। हम नुक्ते नहीं निकाल सकते, हम तो वो कस्मों की शिद्दत जो है उसके बोझ तले अभी तक दबे हुए हैं। नवाज शरीफ साहब को बाहर भी तो भेज दिया ना कन्विक्शन। कौन सा कॉन्विक्ट पहले इन्होंने नहीं भेजा, इन्होंने वो तो एस्टेब्लिशमेंट ने भेजा। चले थ्रू कोर्ट ऑर्डर ही मेरा मतलब है कोर्ट ऑर्डर भी जो एस्टेब्लिशमेंट ने करवाया। साहब ने कहा कि नवाज शरीफ साहब को लंदन भेजने में मेरा कोई किरदार नहीं था, बड़ी कस्में भी खाई हैं, आपका क्या ख्याल है? आप तो उस वक्त बड़े सेंटर ऑफ, मेरे ख्याल में उनका किरदार था, मतलब कोई ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनका किसी बड़े इवेंट में किरदार न रहा हो। आपने सुन लिया मुजीबुर रहमान शामी, ख्वाजा आसिफ, मोहम्मद जुबैर क्या कह रहे हैं, और भी बीसियों वीडियोज हैं, बीसियों गवाह हैं जो बताएंगे कि ये सब कुछ उनका किया धरा है। वो बाद में बताते हैं, लेकिन आपको मैं एक वाकया सुना दूं कि एक शाम तकरीबन 7, साढ़े 7 बजे का वक्त था और प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक मीटिंग कॉल की गई। मैं क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हाउस में ही था, मुझे भी बताया गया कि फलां मीटिंग रूम में पहुंचे। जब मैं वहां पहुंचा, मैं क्योंकि कोई और काम कर रहा था मीडिया से रिलेटेड, मैं थोड़ा लेट पहुंचा, तो बाकी तमाम लोग पहुंच चुके थे। 10 से 12 लोग थे, हमारे सीनियर तरीन किचन कैबिनेट जो कहा जाता है, करीब तरीन लोग जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के थे, वो वहां पर मौजूद थे। तमाम सीनियर्स थे, जूनियर्स में या यंगस्टर्स में, जूनियर चले ना कहें, यंगस्टर्स में हम दो ही थे, मुराद सईद साहब और मैं। और वो मीटिंग शुरू हो गई। गालिबन अगर मैं गलत नहीं तो उसमें उस्मान डार भी मौजूद थे। तो मीटिंग शुरू हो गई। टोटल 10 से 12 पॉलिटिकल लोग थे। मीटिंग शुरू होने से पहले जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो मुझे परवेज खटक साहब ने पूछा कि ये मीटिंग किस चीज़ की है, क्योंकि वो तमाम लोग आके बैठे हुए थे। और असद उमर साहब ने मेरी तरफ देखा कि मैं जवाब दूंगा कि किस चीज़ की है। अमूमी तौर पर मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में होता था, मीटिंग्स का पता होता था। इस मीटिंग का मुझे नहीं पता था क्योंकि अचानक कॉल हुई थी। थोड़ी देर के बाद दरवाज़ा खुलता है जिसमें से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान दाखिल होते हैं और उनके साथ आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा होते हैं और DG ISI फैज़ हमीद साहब होते हैं। आकर बैठ जाते हैं, मीटिंग शुरू होती है। आपको इमरान खान का तो पता ही है, इमरान खान जिस तरह तकरीरों में है ना आपके सामने या जिस तरह बात करते हैं, वो असल जिंदगी में भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। उनके बाजवा साहब या नवाज शरीफ या जरदारी की तरह दो रूप नहीं है, वो सीधी बात ही करते हैं। और कई दफ़ा लोगों को उनकी बातें बुरी भी लग जाती हैं या लोग कहते हैं यार ये चालाक नहीं है, बड़े इस तरह तो सीधी बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो सीधी बात करते हैं, जो दिल में होता है वो बोल देते हैं। उन्होंने मीटिंग शुरू की कि देखिए जी अब इकॉनमी पिक करना शुरू हुई है, हुकूमत जेल होकर काम करना शुरू हुई है। तो ये तमाम लोग जो मेरे मेन लोग हैं, ये अक्सर मेरे से सवालात पूछते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक अफवाह है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो हमारी हुकूमत गिराना चाहती है और इसके लिए उन्होंने काम शुरू कर दिया। और इमरान खान ने कहा मैंने सोचा क्यों साजिशें करें, सीधा मुंह पे बात कर लें। तो आपको मैंने बुलाया है, ये मेरी तमाम कैबिनेट आपके सामने बैठी है। जो सीनियर लोग थे, मैंने बताया 10-12 लोग थे, ये इनके कोई सवालात हैं, आपके कोई सवालात हैं, कोई गवर्नेंस पर इश्यूज है, कोई एस्टेब्लिशमेंट को प्रॉब्लम्स हैं हमसे, तो खुलकर यहां पर बात हो ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो, कोई ऐसी बात ना हो। ये वैसे इमरान खान ही कर सकता था, कोई और प्राइम मिनिस्टर ये नहीं कर सकता। तो इमरान खान ने खुल के जनरल बाजवा के सामने ये बात कर दी। अब जनरल बाजवा साहब ने शुरू ही कुरान करीम से किया। उन्होंने कुरान उठाया, वहां पर उनके पास कुरान नहीं था जैसे आजकल जेब में लेके फिरते हैं माजरत के साथ। उस टाइम उन्होंने वर्बली कुरान उठाया और यह कहा कि बिल्कुल हम किसी तरह से भी ऐसी किसी चीज में मुलव्वस नहीं है और ना होना चाहते हैं। और उन्होंने अगली बात यह कही कि आप अपने वोटों से जीत कर आए हैं। परसेप्शन तो बन सकती है कि फौज किसी को लेके आ रही, ये बाजवा साहब के अपने अल्फाज थे, हम आपको नहीं लाए, आप खुद, ये उन्होंने कुरान उठा के कहा कि आप खुद अपने वोटों से जीत कर आए हैं। और इस टाइम तो हुकूमत का काम यही होना चाहिए कि वो डिलीवर करे और इकॉनमी बेहतर करे, तो आप अपने काम पे फोकस करें, ये इस तरह की अफवाहों पर कान ना धरें। हम बिल्कुल किसी ऐसी चीज में मुलव्वस नहीं होंगे, ना हुए हैं ना बाद में होंगे। आपको 5 साल का मैंडेट मिला है, 5 साल आप पूरे करें, उसके बाद अवाम फैसला करेगी। कुछ लोगों ने सवालात भी किए। मुझे याद है कि जो हमारे एविएशन के मिनिस्टर थे सरवर साहब, उन्होंने बड़ा एक तीखा सवाल किया, बाजवा साहब ने उसका भी जवाब दिया। सीधे सीधे सवालात हुए और उसमें बार बार उन्होंने कुरान उठाकर ये कहा और फिर ये भी कहा कि मैंने नवाज शरीफ को बाहर नहीं भेजा। जब उन्होंने ये बात कही ना, क्योंकि पहली बात का तो मुझे नहीं पता था, नवाज शरीफ को बाहर भेजने का मुझे पता था। किस दिन वो दास्तान भी सुनाऊंगा, क्योंकि इमरान खान साहब की हुकूमत की तरफ से मैं नवाज शरीफ से 2 से 3 दफा जेल में मिला और एक्सटेंडेड मुलाकातें हुई। शायद मैं वाहिद PTI में से था बंदा जो जाकर उनसे मिला जब वो इलाज नहीं करवा रहे थे। और याद होगा मरियम बीबी कहती थी कि आज हार्ट अटैक हो जाना है, कल हो जाना है, खुदा ना खास्ता, उनकी जिंदगी खत्म हो जानी, उनके प्लेटलेट्स कम हो जाने। मैं जब मिलने गया तो नवाज शरीफ साहब मेरे से भी तरोताज़ा और तंदुरुस्त थे और बेहतरीन हालत में थे। और मैं 3 डॉक्टर्स, वो किसी दिन दास्तान पूरी सुनाऊंगा, तो डॉक्टर साथ लेके गया था। बहरहाल तो मुझे तो पता था कि वो बीमार नहीं है, प्लेटलेट्स कम नहीं है। तो उस टाइम प्लेटलेट्स बाजवा साहब ने कम किए थे। तो जब बाजवा साहब ने ये कसम खाई ना कि मैंने नवाज शरीफ को बाहर नहीं भेजा, तो मेरे दिल में उसी टाइम आया, मैंने कहा लो भाई। और दूसरी बात ही कि जब इन्होंने कुरान की कस्में खाई तो मैं तब भी सोच रहा था कि मुल्क का आर्मी चीफ हो, यूनिफॉर्म के अंदर हो और इस तरीके से कुरान उठाए।
दैट शोज अ लैक ऑफ मोरालिटी एंड लैक ऑफ इंटेग्रिटी. इनको नहीं उठाना चाहिए था. अगर ये सच्चे झूठे जो भी हैं, नुकसान फायदा ये भी है इस उम्र के इस हिस्से पर, और इसका मैं इजहार बहुत सारे लोगों से कर चुका हूं. ये मैं आज पहले दिन नहीं कर रहा. चौधरी गुलाम हुसैन साहब इसके गवाह हैं. मैं उन्हें बता चुका हूं ये बात, और बहुत सारे लोगों को, कि मैंने तभी उनको कहा था कि ये जब ये वाकया हुआ तो मैं उसी टाइम सोच में पड़ गया कि मुल्क का आर्मी चीफ और ऐसे कुरान उठा रहे हैं. ये दिस डजंट शो मैच्योरिटी. दिस डजंट शो कि इस बंदे के अंदर कोई डेप्थ है. बहरहाल अब उन्होंने दूसरी दफा ये बात कही है. अब पूरी दुनिया को पता है. तो अब आप उनकी दिमागी हालत सोचें कि या तो किसी मसले में है. वैसे मसले में नहीं, उस टाइम भी तो उठाया था उन्होंने, उस टाइम तो मसले में नहीं थे. ये मेरा ख्याल उनका अमूमी बिहेवियर है. वो झूठ बोलते में कोई बहुत ज्यादा आर नहीं समझते, कोई लंबा चौड़ा काम समझते नहीं, और मेरा ख्याल है दूसरों को बेवकूफ समझते हैं और थोड़ी सी लैक करते हैं. तो भाभी साहबा को घर में, बच्चों को, दूसरे जो उनके इर्द गिर्द के रिश्तेदार हैं, उनको सोचना चाहिए, बैठ के उन्हें समझाना चाहिए कि जो उन्होंने कर लिया, हुकूमत उन्होंने गिरा ली, ये कालक उन्होंने मल ली अपने हाथों पर, अपने मुंह पर, लेकिन अब कस्में खाकर अपनी आखिरत तो तबाह ना करेंगे. सबको पता है. मैंने 2-3 तो आपको वीडियोस भी सुना दी. खुद मैं गवाह हूं बहुत सारी चीजों का. और प्लेटलेट्स का तो बड़ा आसान काम है. आपको बता देता हूं कि प्लेटलेट्स का जो टेस्ट होता है, वो जिस ट्यूब में डाला जाता है, जो टेस्ट ट्यूब जिसके साथ जाकर बाद में टेस्ट होना होता है लैब में, उसमें पहले से एक लिक्विड होता है. मुझे उसका नाम नहीं आता, फिजिशियन नहीं हूं, मुझे कई फिजिशियंस ने उसके बारे में बताया. कल रिसर्च करके दोबारा बता दूंगा आपको. उसका सिंपल ये कि अगर आपके ब्लड को उसके अंदर डिल्यूट ना किया जाए, मीन हिलाया ना जाए, उस ट्यूब को अच्छी तरह से मिक्स ना किया जाए ब्लड डालते ही उसको, तो आपके प्लेटलेट्स बिल्कुल उतने ही आएंगे जितने नवाज शरीफ साहब के आए थे. मीन अगर उस टेस्ट ट्यूब के अंदर ब्लड डाल के सीधा उस ट्यूब को अगले 10-15 मिनट रख दिया जाए और उसको मिक्स ना किया जाए, और उसके बाद उसको भले मिक्स करें और टेस्ट कर लें, तो प्लेटलेट्स जो हैं वो वैसे ही आएंगे जैसे नवाज शरीफ साहब. तो कुछ नहीं, उन्होंने कोई ब्लड नहीं बदला, कुछ नहीं बदला, मिक्स नहीं किया था सिर्फ उस ट्यूब को, और उसका रिजल्ट ही आ गया. और जाहिर है बाजवा साहब उसके अंदर शामिल थे सब कुछ करवाने में. हमारे लोग भी शामिल होंगे उस सारी चीज में, इसमें कोई शक नहीं. लेकिन नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजने में इनका काम था. तब भी झूठी कस्में खाई, अब भी झूठी कस्में खा रहे हैं. तो मैं बाजवा साहब को यही मशवरा दूंगा कि ना करेंगे. आपने अपने लिए बहुत बुराई कमाई है. अब आप बर्दाश्त कीजिए. आपने जो किया है, जो जुल्म किया, अब आपको बर्दाश्त करना, बल्कि आपकी अगली नस्लों को बर्दाश्त करना पड़ना. सर, अब जो ज़ियाउल हक ने किया हुआ है, एजाजुल हक जितना मर्जी ठीक बन के फिरे, उन्हें तो पता है ना कि वो एक ऐसे शख्स के बेटे हैं जिन्होंने एक पॉलिटिकल वजीर आजम को कत्ल किया. तो वो और बात है कि उस पॉलिटिकल वजीर आजम जिसको कत्ल किया था, बेचारे को फांसी दी थी, उनके बुरसा आज इतने बेशरम है कि उसी एजाजुल हक को साथ बिठाकर बैठे हुए हुकूमत में. लेकिन एजाजुल हक साहब को तो पता है ना उनके वालिद ने क्या किया था, बल्कि उनकी अगली नस्ल को भी पता होगा जो होगी कि हमारे दादा ने क्या किया था. तो ये अब जो मामला है, ये तो बाजवा साहब चलना है आगे. ये आप तक तो नहीं खत्म होना. ये तो आगे हिसाब आने, कम से कम जब तक हम जिंदा हैं, हम तो आवाज उठाएंगे ना कि ये जो जुल्म हुए हैं, और ये वाली नस्ल तो इस पे बात करती रहेगी. तो अब ये लंबी गेम है आपके लिए. ये प्रॉब्लम जो है लंबी है. अब बर्दाश्त कीजिए जो कुछ आपने किया. हम तो नहीं चाहते थे कि ये सब कुछ हो. प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो आपको तब भी मौका दिया था. आपको तब भी मौका दिया था कि आप इस साजिश से बाज आ जाएं, जब खुल के अपनी पूरी किचन कैबिनेट के सामने खुल के आपको कह दिया था कि क्या आप ये कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, सीधी सीधी बात बता दें. अब तब भी बाज आ सकते थे कि प्राइम मिनिस्टर को पता चल गया, लेकिन आप बाज नहीं आए और आपने सब कुछ किया. अब ये ना कीजिए. अब कुरान करीम और इन चीज़ों को बीच में ना लाइए. एवरीबॉडी नोज एवरीथिंग. अब आपके इट इज़ टू लिटिल टू लेट. अब आपके इस करने से कुछ फ़ायदा नहीं है. आप बदनाम भी हो चुके हैं. आप जो कर चुके हैं वो भी गंद पूरे पाकिस्तान को उठाना पड़ रहा है. अब ना कीजिए. इसमें बेहतरी तो मैं नहीं कह सकता आपके लिए. अब क्या बेहतरी होगी? आप कहीं पर भी उस वकार के साथ तो नहीं बैठ सकेंगे. सारी दुनिया को पता है कि आपने, या तो आप इमरान खान को बता के करते ना, फिर भी आपका चलें कोई एहतराम होता. आपने पीठ में छुरा घोंपा. आखिरी मिनट तक मैं इस चीज़ का गवाह हूं कि आखिरी मिनट तक आप इमरान खान से झूठ बोलते रहे. कि आपका इसमें एक तरफ आप झूठ बोलते थे और हमारे ही लोगों से मीटिंग्स करते थे. आप किसी और से नहीं, हमारे ही वजीरों से मीटिंग्स करके तो आप हुकूमत गिराने की कोशिश करते थे. इमरान खान को आपने धोखा दिया. तो इसलिए ये ना कीजिए, मेहरबानी आपकी. अच्छा जी, दूसरी खबर आपके सामने. इमरान खान साहब ने मीडिया टॉक की है और उसमें उन्होंने एक दफ़ा दोबारा यादा किया है कि वो किसी तरह से भी ये जो NRO और ये तमाम चीज़ें हैं, ये इमरान खान साहब बिल्कुल किसी सूरत इस सिमत वो नहीं जाना चाहते, ना वो जाएंगे. जो कुर्बानी हुई वो देने को तैयार हैं और जेल के अंदर बैठे हैं. उनकी बातचीत का एक ही मतन है और वो यही है कि वो हर सूरत कुर्बानी देंगे. वो इनके साथ NRO नहीं करेंगे. सऊदी अरेबिया पे उन्होंने कहा कि हमारे बेहतरीन रिलेशनशिप थे सऊदी अरब के साथ, बेहतरीन रिलेशनशिप हैं, हमारा कोई उनके साथ मसला नहीं है. और हमने जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की थी पूरे मुसलमान दुनिया की उनकी हुकूमत के दौरान, ये इसीलिए मुमकिन था कि सऊदी अरब से और तमाम मुसलमान मुल्कों के साथ बेहतरीन हमारे रिलेशनशिप थे.
बहरहाल वो वरीड है अपनी बेगम की सेहत के बारे में, क्योंकि आपको ये बताएं कि बुशरा बीबी की सेहत बहुत ख़राब है। हम आपको बार बार बता रहे हैं बुशरा बीबी की सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब है। कल भी डॉक्टर्स ECG उनकी नॉर्मल नहीं आई, उनको दिल में भी तकलीफ़ है, और कल रात गए एम्बुलेंस उन्हें शायद बाहर लेके गई है, या शायद डॉक्टर्स को वहाँ पर लाके, क्योंकि कुछ बताया नहीं जा रहा, उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है, लेकिन उनकी सेहत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। ये हमें ज़राए से भी पता चला है जेल के कि उनकी सेहत ख़राब है और उनको बार बार ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ रही है। और अब उनकी एक डॉक्टर ने लिख के दिया है कि उनकी ECG भी जो है वो नॉर्मल नहीं आ रही। जहर का मामला तो पहले ही सामने आ चुका है कि उनकी रिपोर्ट साबित कर चुकी है कि उनको जहर दिया गया, उनको उनकी एंडोस्कोपी जो है, और इसके ऊपर इवन अमेरिका से जो डॉक्टर वकास नवाज हैं वो भी अपना व्यू पॉइंट इसके ऊपर दे चुके हैं कि ये एंडोस्कोपी नॉर्मल नहीं है और इसमें जहर के खदशात शामिल हैं। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो हुकूमत का मंसूबा है इद्दत केस को ताख़ीर करनी है ताकि उतनी देर तक अलकादर केस के अंदर इमरान खान को और बुशरा बीबी को सज़ा दे दी जाए ताकि रिहा ना करना पड़े। इसलिए तारीख पे तारीख डाली जा रही है और इद्दत केस जो है उसको डिसाइड नहीं किया जा रहा और उसमें एक तारीख के बाद दूसरी तारीख दे दी जाती है। और इसी तरह का काम जो बुशरा बीबी को डयाला जेल मुंतकिल करना उसमें भी किया जा रहा है। एक दिन वकील 5 मिनट लेट हुआ था तो जज साहब ने केस ही खारिज कर दिया था और पिछले 2-2.5 महीने से ये केस चलाया जा रहा है और 1 मिनट का ऑर्डर है कि उनको वहां पर ट्रांसफर कर दें। जब ये पता भी चल गया कि 125 से 150 औरतें, गालिबन 141 खवातीन जो हैं वो बुशरा बीबी की अरेस्ट के बाद से डयाला जेल मुंतकिल कर दी गई थी और कहा यह जा रहा था कि वहां एक औरत की भी जगह नहीं है, तो इसके बाद ऑर्डर दे देना चाहिए था। लेकिन उसको भी हुकूमत लटका रही है, अदालत भी लटका रही है, जानबूझ के वहां पे भी पॉलिटिक्स खेली जा रही है। अच्छा जी, पीपल्स पार्टी के मंदोखेल साहब ने कहा है कि नवाज शरीफ जो हैं वो ये गेम खेल रहे हैं शहबाज शरीफ के साथ और चंद महीनों में वो शहबाज शरीफ को मजबूर कर देंगे कि वो फेडरल गवर्नमेंट छोड़ दें। मंदोखेल साहब, या तो आपको पता नहीं तो या आप भी गेम में शामिल हैं। ये दोनों भाई मिले हुए हैं, ये बिल्कुल एक दूसरे के खिलाफ नहीं है। ये दोनों भाई अब फौज को गंदा करके ये हुकूमत छोड़ेंगे और छोड़ने का बयानिया बनाएंगे। आप देखेंगे अगले, ये तो बीच में ज़िमनी इलेक्शन आ गया, वरना बयानिया इन्होंने तत्ता किया हुआ था, अब दोबारा इन्होंने लूटा है मिलके मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ। तो आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में गुड कॉप बैड कॉप खेलेंगे, अंदर से ये एक ही होंगे और ये जिन्होंने इनको हुकूमत पे बिठाया उन्हें ही गंदा करके यहां से जाएंगे। अच्छा जी, हेल्थ कार्ड बंद किया हुआ है। माँ की हुकूमत, हमें बताई गई थी कि माँ की हुकूमत है पंजाब के अंदर, और ये जो माँ की हुकूमत है बड़ी कोई डाइन किस्म की माँ है कि हेल्थ कार्ड बंद किया हुआ है और मरीज जो है वो ख्वार है सड़कों पर, लोगों के डायलिसिस नहीं हो रहे हैं, हार्ट के लोगों के ट्रीटमेंट नहीं हो रहे हैं। क्यों? कहती क्या है जब लोग उनसे पूछते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है। असल बात है इमरान खान का प्रोजेक्ट था इसलिए इसको बंद किया हुआ है। तो हेल्थ कार्ड बंद है बीबी की तरफ से, लोग ख्वार हो गए, लोगों के प्यारे जो हैं वो वफात पा रहे हैं बगैर इलाज के, और ये 3-3 अरब का हेलीकॉप्टर खरीद रही हैं, 3-3 करोड़ के टायर डलवा रही हैं, नए जो ऑफिसेज हैं उनको रेनोवेट करवाया जा रहा है। तो बाजी के जो हैं वो काम अपनी जगह पर हैं। अच्छा जी, जस्टिस बाबर सत्तार साहब के खिलाफ एक नई कैंपेन लॉन्च कर दी गई है। इस पर हम आज बात नहीं करेंगे, कुछ डिटेल इकट्ठी कर रहे हैं, ये आपको बताएंगे कि इसमें इस्टेब्लिशमेंट भी शामिल है और ये लोग भी शामिल हैं। तो हम जस्टिस बाबर सत्तार साहब के केस के ऊपर कल बात करेंगे। और PTI का जो बाजोड़ में इलेक्शन हुआ है उसमें PTI की टिकट वाला उम्मीदवार हारा है और इंडिपेंडेंट उम्मीदवार जीता है, उसके ऊपर भी हम कल सुबह के वीलॉग में बात करेंगे। अभी ज़रा लंबा हो गया, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।